Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss exercise 9.2. Exercise 9.2, question number first. ABCD is a parallelogram. Here given ABCD. ABCD is a parallelogram. AE, this is AE. AE perpendicular DC and CF. CF perpendicular AD. AE perpendicular DC, CF perpendicular to AD. If AB is 16 centimeter and A is 8 centimeter, AB is 16 centimeter and AE is 8 centimeter, A is 8 centimeter, CF 10 centimeter, CF 10 centimeter. Find the AD हमें find करना है. Now start. First of all, ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram means CD equal to AB और AB किसके इक्वल है 16 सेंटीमीटर. area of parallelogram ABCD is equal to base into height. Here base is CD and height AE. CD is 16 centimeter and AE given है 8 centimeter. Right? Now in area of parallelogram ABCD, area of parallelogram ABCD. In this base is AD base into height is CF. Here AD is given, not AD and CF is given 10 centimeter. Right? Now both are same, so 16 into 8 is equal to AD into 10. तो AD is equal to multiply कीजिए 16 into 8 upon 10 divide by 10 यानी 12.8 सेंटीमीटर. क्लियर? सिंपल सा है. एक बार बेस हमने CD ले लिया, बेस इंटू हाइट. एक बार बेस AD ले लिया, बेस इंटू हाइट. राइट? Second question, if E, F, G and H are respectively the midpoint of sides of a parallelogram ABCD, of a parallelogram ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoint. E, F, G and H. E, F, G, H are respectively the midpoint of sides of a parallelogram. Right? प्रूव करना है E, F, G, H is equal to half of ABCD. इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसको भी. राइट? ABCD क्या है? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD parallelogram है. H and F are the midpoint. H and F are the midpoints. H और F midpoint है. midpoint है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? HF पैरेलल टू CD. भाई इस लाइन के मिडपॉइंट है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के मिडपॉइंट है तो इसका मीनिंग हो गया ये पैरेलल होगी. HF पैरेलल है CD के. राइट? HF पैरेलल टू CD. अब HF पैरेलल टू CD तो एरिया ऑफ ट्राइंगल HGF is equal to half of
area of HFCD. Region same base HF, same base HF and lie between parallel lines, right? Same base lie between parallel lines, तो area of triangle is equal to half of a parallelogram. And same HF parallel to CD and CD parallel to AB, so therefore HF parallel to AB means ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मीनिंग हो गया ये आपस में भी पैरेलल होगी, तो HF पैरेलल टू AB. सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABFH. ये नंबर 2. रीजन वही सेम बेस HF and lie between same base and lie between parallel lines. Adding 1 and 2, adding 1 and 2 ऐड कर दीजिए 1. एरिया ऑफ ट्राइंगल HGF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड HEF is equal to half of area of HFCD plus half of area of ABFH. दोनों को ऐड कर लीजिए. इसको ऐड करेंगे क्या बनेगा, एरिया ऑफ दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ कॉमन, इसको ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD. यही हमें प्रूव करना था. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. इस बेस के ऊपर इन पैरेलल लाइन के बिटवीन एक ट्राइंगल है, उसका एरिया इसके पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा. बिल्कुल सेम ऐसे नीचे की साइड में इस बेस पे पैरेलल लाइन के बिटवीन ये ट्राइंगल है, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा. दोनों को हमने ऐड किया, ट्राइंगल मिलके पैरेललोग्राम बन गई और ये पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गए. राइट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. P and Q are any two points lying on the sides DC and AB, lie on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. ABCD पैरेललोग्राम में DC के ऊपर P पॉइंट है एंड AD के ऊपर Q पॉइंट है. राइट, ABCD पैरेललोग्राम है. शो दैट हमें प्रूव करना है कि APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC. Okay, now ABCD is a parallelogram. पैरेललोग्राम है तो इसका मीनिंग हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. रीजन है सेम base AB and lie between parallel lines. राइट, तो ये हो गया नंबर 1. बिल्कुल सेम ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD. ये नंबर 2. सेम रीजन, same base BC and lie between parallel lines. Right, lie between parallel lines. यानी इस बेस के ऊपर ये ट्राइंगल बनी हुई है APB
और ये पैरेलल लाइन है, तो लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, सेम बेस पे है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। इस बार इसको बेस ले लो, ये पैरेलल लाइन है, बीसी बेस के ऊपर ये ट्राइंगल बनी हुई है, और ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, राइट। तो ए बी सी क्यू बी क्यू सी का एरिया ए बी सी डी के हाफ के इक्वल होगा, राइट। अब फ्रॉम 1 and 2 से ये हाफ ए बी सी डी, ये भी एरिया ऑफ हाफ ए बी सी डी, आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। इज इट क्लियर? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। P is a point on the interior of a parallelogram। ABCD पैरेललोग्राम है, उसके इंटीरियर में कोई P पॉइंट है, इंटीरियर में, डायगोनल पे नहीं है, ये ध्यान रहे, डायगोनल पे नहीं, कहीं भी हो सकता है, मैंने यहां ले लिया, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, डायगोनल पे कोई जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल पे है, राइट। प्रूव करना है APB और PCD हाफ ऑफ कंप्लीट ABCD का, क्लियर। तो ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, right। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, जो P से पास हो रही है, ये P से पास होते हुए ये लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ EF parallel to AB, EF parallel to AB and passing through P, एंड पासिंग थ्रू P, P से पास हो रही है, AB कोई लाइन ड्रॉ की हमने, AB के पैरेलल EF जो पासिंग थ्रू P, राइट। अब इसके अंदर EF क्या है, EF AB के पैरेलल है, EF है AB के पैरेलल है, तो सेम बेस AB एंड EF पैरेलल टू AB, यानी लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ EFBA, एरिया ऑफ EFBA, एरिया ऑफ EFBA, क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसे ही AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल CD के, एंड EF हमने पैरेलल लिया AB के, तो इसका मीनिंग हो गया देयरफॉर EF parallel to CD, EF parallel to CD, same base CD and EF parallel to CD, same base CD and EF parallel to CD, right। तो area of triangle PCD is equal to half area of DCFE, मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, सेम बेस पे लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, बिल्कुल सेम ऐसे ही, सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस पे लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा। इसको नंबर 2 दे दीजिए, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2, area of triangle APB plus area of triangle PCD is equal to half area of EFBA plus half area of DCFE, area of DCFE, right। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इस पैरेललोग्राम को, इसको, तो क्या बनेगा, ये कंप्लीट बन जाएगी एरिया ऑफ ABCD, यानी टू ट्राइंगल्स का सम है, हाफ होगा कंप्लीट पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। यही हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, क्लियर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, APB और APCD। इसको नंबर 3 दे दीजिए, दिस इज नंबर 3, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD, ये नंबर 3। अब हमें सर सेकेंड पार्ट प्रूव करना है,
बिल्कुल सेम ऐसे ही लेके चलेंगे। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक। अभी हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए एडी के। जी एच ले लीजिए, जी एच। पहले हमने ई एफ को ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था, अब जी एच को ए डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी डी जी एच पैरेलल टू ए डी, जी एच पैरेलल टू ए डी, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी is equal to half of area of ADHG। नंबर 3 हो चुका था, ये नंबर 4। रीजन सेम बेस एंड lie between parallel lines। सेम बेस इस बेस के ऊपर AD पे और ये पैरेलल लाइन है, तो सेम बेस lie between पैरेलल लाइन। ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ एचसीबीजी, ये नंबर 5, ये आपका हो गया नंबर 5। रीजन वही है, सेम बेस लाई बिटवीन, लिख लीजिए चाहे सेम बेस। इस बार बेस कौन सा होगा, बीसी। Same base and lie between parallel lines, right। adding 4 and 5, 4 और 5 को हम ऐड करेंगे, adding 4 and 5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC is equal to half area of ADHG plus half area of HCBG, राइट। इस बार इसको और इसको प्लस करना है, इस पैरेललोग्राम को, इसको बनेगा क्या, वही कंप्लीट बनेगा, हाफ ऑफ एरिया ABCD, ये नंबर 6 हो। मींस हमने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस area of triangle PBC is equal to this। Now from third and sixth से RHS में क्या है, हाफ ABCD, और इसमें भी दोनों में RHS सेम है, दोनों में RHS क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सिक्स से आरएचएस सेम है तो एलएचएस क्या होगा, सेम होगा। तो ये प्रूव हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, राइट। इज इट क्लियर? सिंपल सा है, पार्ट्स में है, पार्ट्स में करोगे तो इजीली समझ में भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन 5 PQRS इज ए पैरेललोग्राम गिवन है एंड ABRS इज ए पैरेललोग्राम, ये भी गिवन है। ये 2 पैरेललोग्राम है, सेम बेस पे है, सेम बेस SR एंड लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। लगभग सब में वही चीजें यूज हो रही है, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। तो हमने थ्योरम में प्रूव किया था, सेम बेस लाई बिटवीन पैरेलल लाइन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। PQRS एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड में एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AXS, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABRS। रीजन क्या रीजन है, सेम बेस
इसमें वही बात है, सेम बेस ए एस एंड lie between parallel lines, lie between parallel lines, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस बेस के ऊपर, ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल लाइन है, इसके बिटवीन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, राइट। ये नंबर 2, ये नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 में आरएचएस सेम है, तो एलएचएस क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ए एक्स एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, पी क्यू आर एस, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, क्योंकि सेम बेस पे लाई बिटवीन पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। और इस ए एस पे, बेस पे ये पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम ए बी आर एस के हाफ के इक्वल होगा। दोनों को कंपेयर करके हम प्रूव कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्स एस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, राइट स्टूडेंट। तो ये थे इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस। लास्ट में आप थोड़ा सा, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, वो आप अपने आप ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।